बहुत ही अलग शो है। आई डोंट थिंक आपको टेलीविज़न में आजकल ऐसे शोज़ देखने को मिलेंगे। स्टोरी, कैरेक्टर्स, इमोशंस बहुत ही रियल है, ओवर द टॉप बिल्कुल नहीं है। Now is the time to meet our cast and the producer. Producer Rajshri Ojha, as you all probably know, इन्होंने आयशा फिल्म की थी। इनको काफ़ी appreciation and applause के लिए मिला है already. And to introduce you to the cast, we have there's a specific way she wants it pronounced. Shamata Anchan as Myra, and we have Sameer Arora as Kabir. So I request all three of you, starting with Rajshri, to tell us a little more about the show, the reason, this subject, first time association with Zee TV, everything. Just tell us. So, good afternoon everybody. Welcome to Bin Kuch Ka's first press conference. So you know, you met Kabir and Myra. This show began कैसे कभी हिंदी में बोलूँगी, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है तो मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ, बंगाली हूँ थोड़ा, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। ये जो शो है ये बहुत एक हल्का फुल्का शो है, ड्रामा भी है, एक रोमांटिक कॉमेडी, एक लड़की का जर्नी है, मायरा की जर्नी, जो एक शुरू करती है एक छोटे टाउन से फ्रॉम जयपुर एंड इट गोज ऑन एंड शी मीट्स दिस really handsome globetrotter journalist. They have these serendipity encounters, and then it is her journey. It is a girl's journey of finding. She realizes that love has no boundaries, and then there is that everything is the same in every culture. That's the basic gist of this show. Working with Zee TV was fab and is fab because I came from a place, I didn't actually go through the channel, so I have been approved, my show got approved by Mr. Subhash Chandra and his team, by Umesh and Divya. They have been like a dream. I was very scared to do television because I've heard horror stories. कि आपको ये करना है वैसा करना है, I come from film background, आयशा के बाद I've done 2 independent films, तो मुझे ये बहुत interference भी नहीं चाहिए था. I wanted to make a show which I wanted to tell a story about. So that was a fabulous journey. It has been a fabulous journey with this team of Umesh Bansal, Divya Ravichandran, Akhilesh and Nilesh and all those guys, and of course Mr. Chandra, who was been really nice to me and said, आपको क्या चाहिए, creative या पैसा? So I said, creative चाहिए, पैसा तो आ जाएगा. So anyway, going back to the show, बहुत मज़ेदार show है. It takes you back to that old days of Basu Chatterjee or Hrishikesh Mukherjee films, where you kind of connect. It's like an everyday, but थोड़ा different है. Gloss तो होना ही है. After all, I'm from Aisha world. So I bring you a little good-looking show. So that's my show. Can we have a little bit from Myra and Kabir about their characters? Hi everyone, I'm Myra Kohli, and Myra is a simple girl. वो ambitious है, उसे journalist बनना है, और लेकिन उसके लिए उसकी family सबसे important होती है. तो अगर उसे अपना ड्रीम जो जर्नलिस्ट बनना है, she has to sacrifice that. So she's ready to do it at the drop of the hat. Myra is a little complicated girl. She, in a way, to show so much love for her family, she kind of looks a little bit. She might come across a little harsh to the outside world, but complicated, yes. She's a little complicated, but in her heart she's very simple, and she's a completely wild character.
आइडियल लड़की है एंड अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है एंड her mom also loves her a lot amongst all the three sisters. उन्हें लगता है कि मायरा परफेक्ट है और कभी कोई गलती नहीं कर पाएगी और मायरा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर रही है to fulfill her mother's dreams rather than hers. And मेरे दो बहनें हैं आबा और रिया. आबा से मायरा इज वेरी क्लोज. वो इमोशनली जो भी बातें होते हैं बहनों के बीच शी कन्फाइड्स मोर इन आभा क्योंकि शी इज़ द एल्डर सिस्टर और उसे लगता है कि वो ज़्यादा मैच्योर है सो उनकी एडवाइस जो होती है इट्स बेटर. एंड रिया तो सिर्फ 1 साल बड़ी है मुझसे तो बहुत लड़ाई झगड़ा व्हाटएवर सब कुछ होता है हमारे बीच लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत प्यार करते हैं एंड एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. और वी हैव अ नेव्यू ऑल्सो. आभा की बेटे जो है आर्यन ही इज द एप्पल ऑफ एवरी कोली वुमन्स आई. एंड एंड देन शी इवेंचुअली मीट्स कबीर and her world goes upside down after he comes into her life. And yeah, that's a journey. And you guys get to see everything. And the EV was amazing, by the way. I don't know about you guys, but I really liked it. Sameer? Hi guys, good afternoon. मेरा नाम है समीर अरोरा. The character I'm playing is Kabir Miranda from Brazil. He's an international journalist, globe-trotting international journalist, born in Brazil, half Brazilian, half Indian. So since I say globe-trotting, so he keeps traveling around the world for his assignments. He's a freelance journalist with a lot of leading channels, international leading channels. और फिलहाल ये इंडिया में है अपने किसी असाइनमेंट के लिए कोई स्टोरी कवर करने के लिए. And that's how I meet Myra Kohli in Mumbai. And the journey begins. That's it, as of now, for the character. Friends, we can open this up for Q&As or we can just have them join you all at the tables, whichever way you all prefer it. Any question that anybody wants to ask in the open forum? Yes. Hi, this is Harleen from Jaggi. I want to know from you, Rajvi, that it's a 6:30 slot. So 6:30 slot पे आपको लगता है कि लोग लूट होंगे because normally if you see about it television then it's like a prime time and everything. So how you feel to be in a 6:30 wala slot? I feel great. I have no qualms where I go on because I feel my content is very strong. जिसको देखना होगा वो देखेंगे नहीं तो रिपीट में देखेंगे. And it's always it's how you, if the content is good, people will tune in. And coming on Z itself is a big thing for me. I feel good. I don't have no problem. 6:30. I actually told my team when they said we know about 6:30. I said great, do 6:30. It's a cute show. It's not like a high drama, motivation drama kind of show. So it works. For me, it works. Friends, I suggest we keep all the questioning to now the round table interaction which we'll have them join you all at the do the electronic group night once before that. कुछ कहे बहुत ही अलग शो है. आई डोंट थिंक आपको टेलीविज़न में आजकल ऐसे शोज देखने को मिलेंगे. स्टोरी, कैरेक्टर्स, इमोशंस बहुत ही रियल है. ओवर द टॉप बिल्कुल नहीं है. ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, लाइट शो है. तो आप जब देखेंगे आप स्ट्रेस फ्री देखेंगे एंड इट्स एंटरटेनिंग सो यू विल बी हैप्पी वॉचिंग इट. आप यू वोंट बी सैड फॉर श्योर. बिन कुछ कहे मैंने जो मेरा थॉट है इसको लेकर बिना कुछ कहे हम आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाएंगे. हर एक वो इमोशन जो आपको हंसाए, रुलाए, थोड़ा सा टिंच ऑफ ड्रामा, फैमिलीज़, सो काम को लेकर आपकी पर्सनल लाइफ, हर इमोशन हम आपको प्रेजेंट करेंगे कह के भी और बिन कुछ कहे भी. सो आपको देखना बहुत ज़रूरी है. एक मौका दीजिएगा देखने का. आई एम श्योर यू विल लव इट. हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई होता है जो हम बिना कुछ कहे वो समझ जाता है हमारी बात को. तो ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, आप दोनों अगर शेयर करना चाहें कुछ इस बारे में? पर्सनल लाइफ में या कैरेक्टर में? पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ में
बहुत व्हाट्सएप करते हैं हम लोग, अगर नहीं कहते हैं तो व्हाट्सएप करते हैं किडिंग बट नहीं, देयर इज नोबडी इन माय लाइफ दैट आई वुड वांट टू से एनीथिंग बिन कुछ कहे। नहीं ऐसा आप पर्सनल लाइफ में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूछ रहे हैं या वैसे ही कुछ पूछ रहे हैं? एनीवन, अच्छा डैडी या फिर कोई भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली मेरी फैमिली, ऐसा रिलेशनशिप आप शेयर करते हो अपनी फैमिली से कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है शब्दों में कि आपको उनसे कितना प्यार है, या आप जो कुछ कर रहे हो आप फैमिली के लिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको खुश देखना चाहते हो। तो बिन कुछ कहे मेरी आंखों में सब दिख रहा है। जर्नलिस्ट का रोल प्ले करना तो कितना चैलेंजिंग था, कितना फन था ये रोल प्ले करना? जर्नलिस्ट का रोल मेरे लिए तो चैलेंजिंग भी था, फन भी था, बिकॉज़ एक एक्टर के लिए एक नया कैरेक्टर प्ले करना, उसके न्यूएंसेस को जानना, उनके एक जर्नलिस्ट के मैनरिज्म को जानना, उनका उठना बैठना, स्टाइलिंग, कॉस्ट्यूम, कॉन्फिडेंस, एक एक चीज़ पे रिसर्च करना। और मैं तो हाफ ब्राज़ीलियन और हाफ इंडियन हूँ, तो मुझे दोनों साइड के जर्नलिज्म पे रिसर्च करनी थी। सो हैज़ बीन अ वेरी चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग जर्नी एंड आई एम एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। एंड हैट्स ऑफ, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिस्ट, जो काम उनको दिया जाता है वो जैसे कॉन्फिडेंस के साथ इतने बोल्ड होके करते हैं, धूप हो, शाम हो, तूफ़ान हो, उनको अपना काम करना है। और वेरी इन्फॉर्मेटिव, पूरी दुनिया की खबर रखनी है, सर्वाइवल भी है, फैमिली भी है, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी केमिस्ट्री थी आप दोनों की ऑन सेट? केमिस्ट्री जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इस शो में ऐसी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है एक लड़का एक लड़की है, प्यार हो गया, शो खत्म। एक्सक्यूज़ मी यार, थोड़ा डिफरेंट, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप अगर प्रोमो ही देखो तो आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। दो डिफरेंट कल्चर मिलते हैं एक टाइम पे, और वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, नहीं होते हैं वो आप लोग बताएंगे हमें देख के। फ़िलहाल अभी तक हम अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, हम लोग the one line statement is opposite attracts, so we may attract or we may not attract. Please watch the show. Also you learn a lot, we learn a lot from each other, क्योंकि हम लोग जयपुर में शूट कर रहे हैं इतने महीने से, so personally also we know each other very well. तो to act in front of the camera, वो chemistry, comfort level बहुत ही अच्छा है, so I can say that he is my friend, my good friend, so that helps a lot. जयपुर पिंक सिटी में आप लोग शूट कर रहे हैं, सो ऐसा कभी हुआ कि मतलब शूटिंग से टाइम निकाल कर कोई फन टाइम या फिर ऐसे कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आज? That's a very good question. शूटिंग के अलावा फन टाइम, हम लोग कभी भी ऐसा होता है कि हमें 30 डेज़ में 1-2 दिन कभी ऑफ मिलता है, तो हम लोग डेफिनेटली गेट टुगेदर्स करते हैं, कॉफ़ी पे जाते हैं, डिनर पार्टीज़ के लिए जाते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। और सेट पे जो हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और यू नो वी टॉक अबाउट इट, वो मस्ती, वो शॉट्स, कौन सा हमने एक्सपीरियंस किया, सबसे अच्छा शॉट कौन सा, बहुत फ़नी था, बहुत इमोशन से भरा था, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने में अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर सेट, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। और हम दोनों बीइंग अ जर्नलिस्ट, यू नो, फ्री टाइम में भी हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम लोग अपने काम को भी उस तरीके से एंजॉय करें। ऑल्सो लाइक पूरा कास्ट और क्रू एक साथ रहते हैं, तो जब हमें बाहर जाना है, वी ऑल गो टुगेदर, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, एंड दे आर ऑल अ रियली गुड बंच ऑफ पीपल। तो किसी के बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लकीली सब बहुत ही अच्छे हैं, तो एनवायरनमेंट जो है बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव है। इससे पहले यू वर वर्किंग विद स्टार प्लस एवरेस्ट, जी। नाउ यू आर वर्किंग विद जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? It's good. I mean, both the channels are good, and for me the main thing was story. मुझे राजश्री मैम के साथ काम करना था, मुझे आयशा बहुत पसंद है। ऑल्सो फाइनाइट शो है, स्टोरी बहुत ही अलग है एवरेस्ट से। मुझे जो यहाँ पर करने को मिल रहा है वहाँ पर मैंने नहीं किया, तो एज एन एक्टर आई फील क्रिएटिवली वेरी सेटिस्फाइड। एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑडियंस अबाउट योर शो, कब से आ रहा है और मतलब क्या खास बात देखने मिलेगी? फ्रेंड्स, बिन कुछ कहे आप देख सकते हैं 6 फरवरी से 6:30 बजे शाम को। आई एम श्योर आप लोग बिज़ी भी होंगे, शायद आपको टाइम मिले ना मिले,
लेकिन एक बार आप टाइम निकाल के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, आपको शो बहुत पसंद आएगा। अब इतने बिजी स्केड्यूल से आप 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। एंड प्लीज़ वॉच अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।